ये है 2022 का पेपर 2। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं फ्री फॉलो। इसमें एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ द मास 1 kg each subjected to a force b depends on a position as f is equal to minus k x I cap plus y j cap kg meter per second square with k is equal to 1 kg per second at the time t is equal to 0. The particle position is r is equal to 1 by root 2 I cap plus root 2 j cap meter and its velocity v is equal to minus root 2 I cap plus root 2 j cap plus 2 by pi k cap meter per second. Let Bx and the By denote the x and the y components of the particle's velocity respectively. Ignore the gravity when z is equal to 0.5 meter. The value of the x By minus y Bx is। तो ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन है कि टॉर्क अबाउट ऑरिजिन इज जीरो फॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन रिमेन्स कंजर्वेड। इसलिए जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप 1 by root 2 0 minus root 2 2 by pi is equal to I cap j cap k cap x y 0.5 bx by 2 by pi। तो I root 2 into 2 by pi minus j cap root 2 by pi plus k cap 1 plus 2 equal to I cap by 2 by pi minus 0.5 by minus j cap x into 2 by pi minus 0.5 bx plus k b x by minus y bx। तो x by minus y bx इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए रेडियो एक्टिव डिके चेन रिएक्शन टू थोरियम 23090 न्यूक्लियस डिकेज इनटू PO यानी पोलोनियम 214 न्यूक्लियस। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अल्फा टू द नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन दिस प्रोसेस इज। तो थोरियम 230 से 90 बनाता है, पोलोनियम 214 प्लस इन अल्फा 42 एंड एम बीटा -1 से 0। 230 इक्वल टू 214 प्लस 4n। तो n इज इक्वल टू 16/4 यानी कि 4। तो 90 इज इक्वल टू 84 प्लस n इंटू 2 माइनस m इंटू 1 यानी m इज इक्वल टू 84 प्लस 4 गुना 2 माइनस m इंटू 1। तो m इज इक्वल टू 92 माइनस 90 इक्वल टू 2। तो हेंस n बाई m इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 इसका है जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रेसिस्टेंस R1 is equal to x ohm and the R2 is equal to 1 ohm are connected to a wire AB of the uniform resistivity as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly along its axis from the 0.2 mm at A to 1 mm at the B. A galvanometer G connected to the center of the wire 50 cm from the each end along its axis for zero deflection when the A and B are connected to the battery. The value of the x कितना हो जाएगा? R1 दिया हुआ, R2 G दिया हुआ, A और B। तो फॉर द बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज R1 by R2 इक्वल टू 0 से 0.5 रो डी एक्स बाई पाई आर एक्स के स्क्वायर 0.5 से 1 रो डी एक्स बाई पाई आर एक्स के स्क्वायर। तो R1 by R2 हो जाएगा 1 by आर एक्स 0 से 0.5 और प्लस 1 by आर एक्स 0.5 से 1। तो R1 इक्वल टू 5 R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 ओम इसका जो आंसर चला जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द units. A physical quantity can be expressed in terms of the electric charge E, electron mass M, Planck constant H, and the Coulomb constant K is equal to 1/4 pi naught, where E naught is the permittivity of the vacuum. In terms of the physical constant, the dimensions of the magnetic field is to be the E alpha, M beta, H gamma, or K delta. The value of the alpha plus gamma plus delta is, तो B is equal to E alpha, M beta, H gamma, K delta। तो B इक्वल टू ई अल्फा एम ई बीटा एच गामा के डेल्टा। तो m के पावर 1 t के -2 a के -1 इक्वल टू ए टी के 0 m के बीटा m l 2 t -2 के गामा और m l 3 a -2 t -4 के डेल्टा। तो m1 l t -2 a -1 इक्वल टू m बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा l 2 r प्लस 3 डेल्टा t a गामा -4 डेल्टा और a अल्फा -2 डेल्टा। कंपेयर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, ए अल्फा गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा -2 डेल्टा इज इक्वल टू -1। तो ऑन सॉल्विंग अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू -3, डेल्टा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider a configuration of the n identical units each consisting of the 3 layers. The first layer is a column of the air of the height h equal to 1 by 3 cm and the second and third are of the equal distance d is equal to √3 minus 1 by 2 cm and the refractive index mu1 is equal to √3 by 2, mu2 is equal to √3 respectively. A light source O is placed on the top of the first unit h1 in the figure. A ray of light from the O is incident on the second layer of the first unit at an angle of theta equal to 50 degree to the normal. For the specific value of the n, the ray of the light emerges from the bottom of the configuration at a distance L is equal to 8 by √3 cm H1 in the figure. तो वैल्यू ऑफ द n कितना हो जाएगा
यहाँ पर डी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, थीटा, फिर एच एयर μ1 μ2 एयर इन यूनिट से जिसका दिए हुए। तो अगर इसको देखें तो इसमें है कि जैसे एच हो गया थीटा 50 डिग्री, एच tan 50 डिग्री, थीटा हो गया, फिर थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा थीटा, फिर थीटा 2 दिया हुआ। तो 1 sin 50 डिग्री इक्वल टू √3/2 sin 50 थीटा, थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री, तो √3/2 sin 45 इक्वल टू √3 sin थीटा 2, तो √3/2 1/√2 इक्वल टू √3 sin थीटा 2, तो थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। एच tan 50 डिग्री पर डी tan 45 प्लस डी tan 30 डिग्री, तो 1/3 √3 प्लस √3 माइनस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2 इंटू 1/√3, तो 2 √3 प्लस 3 √3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस √3 इज बाई 6, तो 4 √3 बाई 6, तो n 4 √3 बाई 6 इज इक्वल टू 8 √3, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चार्ज Q इज सराउंडेड by a closed surface containing an inverted cone of the height h and the base radius r and a hemisphere of the radius r as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is nq by 6 v0 in the SI unit. The value of the nh, तो यहाँ पर h दिया हुआ है, r इसका रेडियस और q h चार्ज दिए हुए बीच में, एक कॉनिकल ऊपर से ये सेमी इसको कह सकते हैं कि स्क्वायर है। तो फ्रॉम द गॉस ला फाई हेमिस्फीयर प्लस फाई कोन इक्वल टू q by unit, total flux produced from the q in the alpha angle phi is equal to q by 2 naught 1 minus cos alpha. For the hemisphere alpha is equal to pi by 2, तो phi hemisphere is equal to q by 2 naught from the equation 1, q by 2 naught plus phi con is equal to q by naught, तो phi con is equal to q by 2 naught, तो 4q by 6 naught is equal to q by 2 naught, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3। Alternatively, phi is greater than number of electric field lines passing through the q surface in the point charge which has uniformly distributed electric field line, thus half of the electric field lines will pass through the hemisphere, another half will pass through the conical surface। सही है। अगला सवाल कि ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन a bow of the mass 0.1 kg attached to a spring with a natural length L0 is equal to 0.1 meter. The spring constant is K1 is equal to 0.009 Newton per meter when the length of the spring L is greater than L0 and is K2 equal to 0.016 Newton per meter when L is less than L0. Initially the bob is read from L is equal to 0.15 meter. Assume that Hooke's law remains valid throughout the motion. If the time period of the full observation is t is equal to n pi second, then the integer closest to the n is, तो L is greater than L naught K is equal to K1, L is less than L naught K is equal to K2. Time period of oscillation T is equal to pi root over m by K1 plus pi root over m by K2. तो T is equal to pi root over 0.1 by 0.009 plus pi root over 0.1 by 0.016. तो T is equal to pi by 0.3 plus pi by 0.4. T is equal to 0.1 by 0.12 pi यानी T is equal to 5.83 pi. तो T is equal to 6 pi यानी n is equal to कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an object and the concave mirror of the focal length f is equal to 10 cm both move along the principal axis of the mirror with the constant of speed. The object moves with a speed v0 is equal to 15 cm per second towards the mirror with respect to the laboratory frame. The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u. When u is equal to 30 cm, the speed of the mirror vm is such that the image is instantaneously at the rest with respect to the laboratory frame and the object forms a real image. The magnitude vm is, तो इसमें है कि जैसे v0 ये है और ये vm मिरर का हो गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट देखें तो लेट y और x, तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू f0 बाई u माइनस f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, तो du बाई dt माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इक्वल टू du बाई dt, तो v m इक्वल टू माइनस v बाई u के होल स्क्वायर v, ठीक है ये, तो गिवन v1 इक्वल टू 0, तो v1 माइनस vm इक्वल टू माइनस ऑफ 15 बाई माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर v और m, तो v1 माइनस वी एम इक्वल टू -1/4 v0 प्लस 1/4 vm, तो v0 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकंड आई कैप और v1 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5/4 vm इक्वल टू v0/4, तो vm इक्वल टू v0/4 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकंड आई कैप बाई 5 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो vm इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 दिया हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी, अब ये मल्टीपल ये सिंगल करेक्ट है, तो इन द फिगर द इनर फिल्ड रीजन ए रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r is equal to 1 within which the electrostatic charge density varies with the radial distance far from the integer as rho is equal to kr, where k is the positive. In the spherical cell B of the outer radius rb, the electrostatic charge density varies as pv is equal to k by r. Assume that the dimensions are taken care of, all physical quantity are in the SI unit. तो ये RA दिया हुआ है, RB दिया हुआ है, फिर A और B दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें है कि
Q1 इज इक्वल टू 0 से 1 के आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 4 पाई के बाई 4 यानी कि पाई के। Q2 इज इक्वल टू 1 से आर 2 के बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 8 पाई के बाई आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। Q2 इज इक्वल टू 4 पाई के आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पाई के आर स्क्वायर माइनस 4 पाई के। Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 4 पाई के आर स्क्वायर माइनस 3 पाई के। Q नेट इज इक्वल टू पाई के 4 आर स्क्वायर माइनस 3। तो E नेट इज इक्वल टू 0 और Q नेट इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा √3/2। सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। अब बी ये जगह देखें तो भी के क्यू आर नेट, ठीक है, भी के क्यू आर नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट पाई के 4r का स्क्वायर माइनस 3/r, यानी भी इज इक्वल टू k/4 पाई नॉट 4r माइनस 3/r। तो k/4 पाई नॉट 4 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू के नॉट। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू पाई के 4 के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो 13 पाई के आ जाएगा। फिर E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई नॉट पाई के 4r का स्क्वायर माइनस 3/r स्क्वायर। तो k/4 पाई नॉट 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 3/5/2 का स्क्वायर, तो 22/25 के बाई ई नॉट इसका ये आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर तो जाएगा बी कि इफ़ आर बी इज इक्वल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज इक्वल टू के बाई ई नॉट। नेक्स्ट है कि इन द सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सर्किट circuit 1 and the circuit 2 shown in the figure, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm. P1 and P2 are the power distribution in the circuit 1 and the circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open condition respectively. Q1 and Q2 are the power distribution in the circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in a closed condition respectively. तो ये सर्किट 1 दिया हुआ है, सर्किट 2 दिया हुआ है, R1 R2 R3 S1 फिर R1/2 फिर R1 R2 R3 S2 R2 R3 दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो केस 1 अगर देखें तो when both the switches are open, equivalent resistance in the circuit 1 RC1 equal 16/11 ohm, equivalent resistance in the circuit हो जाएगा 2। इसके आगे फिर देखें कि RC2 इक्वल टू 6/11 ओम फॉर द वोल्टेज P इज इक्वल टू V² तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो RC1 इज ग्रेटर देन RC2, P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। फॉर द कांस्टेंट करंट फोर्स P इज इक्वल टू I²R, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब केस 2 व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, तो RC1 इक्वल टू 5/11 ओम, RC2 इक्वल टू 1/2 ओम, RC1 इज लेस देन RC2 फॉर द वोल्टेज सोर्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, Q1 इज ग्रेटर देन P1, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एंड RC1 इज ग्रेटर देन RC2 फॉर द करंट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी है जो करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसका ऑप्शन है जो करेक्ट कौन सा है, तो इसमें दिया हुआ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए बबल है द सरफेस टेंशन S, the ideal gas inside the bubble has the ratio of the specific heat gamma is equal to 5/3. The bubble is exposed to the atmosphere and is always retain its spherical shape. When the atmospheric pressure is P1, the radius of the bubble is found to be R1 and the temperature of the enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is P2, the radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas are R2 and the small r2 and the T2 respectively. तो which of the following statement is correct? तो इसमें है कि P गैस इज इक्वल टू हो जाएगा PA + 4S/R, तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस, तो PA1 + 4S/R1 इंटू 4/3 पाई R1 के क्यूब बाई 5/3 इक्वल टू PA2 + 4S/R2 यानी 4/3 पाई R2 के क्यूब के पावर 5/3। तो अब इसके आगे अगर चलें तो यहाँ पर है कि R1 के क्यूब बाई R2 के क्यूब इज इक्वल टू PA2 + 4S/R2 + PA1 + 4S/R1, P1 minus gamma T gamma equal to constant, तो PA2 + 4S/R2 1 minus 5/3 T2 pi/3 is equal to PA1 + 4S/R1 1 minus 5/3 और T1 5/3, तो T2/T1 हो जाएगा 5/3, तो PA1 + 4S/R1 by PA2 + 4S/R2 equal to -2/3, तो T2/T1 इक्वल टू आ जाएगा 5/2 PA2 + 4SR2 by PA1 + 4SR1, तो ऑप्शन डी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सी और डी करेक्ट होगा कि इफ़ द सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट कंडक्टर एंड द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल, then the R1/R2 के whole cube equal to PA2/4S/R2 plus PA1/4S/R1. If the surface of the ball is perfect, then the heat
insulator, then T2 by T1 के 5/2 इक्वल टू PA2 प्लस 4S by R2 PA1 प्लस 4S by R1 इसका आ जाएगा। सही है, तो C और D इसका है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ डिस्क ऑफ द रेडियस R with the uniform positive charge density sigma is placed on the xy plane with the center at the origin. Then the Coulomb potential along the z axis is, तो B of z equal to sigma by 2 pi E naught और root over R square plus z square minus z. A particle of the positive charge q is placed initially at the left at a point on the z axis with z is equal to z naught and z naught is greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle expands a vertical force F is equal to minus c cap with c greater than 0. Let beta equal to c E naught by q सिग्मा। तो which of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम जानते हैं कि W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू K5 यानी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो QVI माइनस QVF प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू KF माइनस KI। तो Q सिग्मा बाई T नॉट इंटू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस JD माइनस Q सिग्मा R बाई T नॉट प्लस CZ इज इक्वल टू KF माइनस 0। तो C इज इक्वल टू Q सिग्मा B बाई T नॉट आ जाएगा। Substitute beta and z, calculate kinetic energy at z is equal to 0. If the kinetic energy is positive, then the particle will reach the origin. If the kinetic energy is negative, then the particle will not reach at the origin. तो इसका आंसर क्या जाएगा, A जाएगा, C जाएगा, ठीक है, A जाएगा, C जाएगा और D जाएगा। यानी कि for the beta equal to 4 and the z naught equal to 25/7 r, the particle reaches the origin. और C है कि for beta equal to 4 z naught equal to I/√3, the particle returns back to the z equal to z naught. और D है कि for beta greater than 1 and z naught greater than 0, the particle always reaches the origin. Next question है कि a double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in the medium 2 of the refractive index N2. The other slit is at the interface of this medium with another medium 1 of the refractive index N1 not equal to N2. The line joining the slit is perpendicular to the interface and the distance between the slit is D. The slit widths are much smaller than D. A monochromatic parallel beam of light incident on the slits from the medium 1. A detector is placed in the medium 2 at a large distance from the slit and at an angle of theta from the line joining them, so that theta equals to the angle of the reflection of the beam. Consider the two approximately parallel rays from the slits received by the detector. तो मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया और ये डिटेक्टर हो गया N1 और N2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें है जो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसमें देखो डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये अल्फा पर फिर डी tan थीटा फिर थीटा डी फिर थीटा थीटा हो गया। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू N1 डी tan थीटा साइन अल्फा माइनस N2 डी tan थीटा साइन थीटा, यानी N1 साइन अल्फा माइनस N2 साइन थीटा इंटू डी tan थीटा तो बराबर 0। तो डेल्टा फाइव बराबर 0। तो इसमें ऑप्शन जाएगा ए और बी। तो इसमें ऑप्शन ए और बी जा रहे हैं, यानी कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा द टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, तो ऑप्शन ए जाएगा और बी जाएगा। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट है जो गलत हैं, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द फिगर in the given PV diagram a monochromatic gas gamma is equal to 5/3 is first compressed adiabatically from the state A to the state B, then it expands isothermally from the state B to the state C, given 1/3 के पावर 0.6 is equal to 0.5, Ln2 equal to 0.7। तो P दिया हुआ है किलो पास्कल में, V मीटर क्यूब में, फिर A, B और C दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉर द adiabatic प्रोसेस A से B, PA भी है, ठीक है, PV गामा इज इक्वल टू PV गामा 10 का पावर 5 इंटू 0.8 5/3 इज इक्वल टू 3 गुना 10 का पावर 5 PV के 5/3। तो VB इज इक्वल टू 0.8 गुना 1/3 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो वर्क डन इन द प्रोसेस कितना हो जाएगा, वर्क डन इन द ठीक है WAB इज इक्वल टू वर्क डन इन द प्रोसेस A से B, WAB इज इक्वल टू PA माइनस PB VB बाई गामा माइनस 1। तो WAB इज इक्वल टू 10 का पावर 5 गुना 0.8 माइनस 10 गुना 10 का पावर 5 गुना 0.4 बाई 5/3 माइनस 1। तो WAB इज इक्वल टू माइनस 50/4 और मॉड ऑफ WAB इज इक्वल टू 60 किलो जूल। तो वर्क डन इन द प्रोसेस B से C आइसोथर्मल में WBC nRT ln VC बाई BA इज इक्वल टू PV VV ln VC बाई BB। तो WBC इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 5 गुना 0.4 ln 0.8 बाई 0.4। WBC इज इक्वल टू 84 किलो जूल। तो वर्क डन इन द प्रोसेस C to A, WC इज इक्वल टू P डेल्टा B इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा B इज इक्वल टू 0। सो द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस A से B से C, तो WABC इज इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WC, यानी माइनस 60 प्लस 84 प्लस 0। तो WABC इक्वल टू 24 किलो जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि B, C और D इसका जो करेक्ट जाएंगे।
क्या क्या करेक्ट जाएंगे, तो जाएंगे बी, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस बी से सी इज 84 किलो जूल, फिर सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ए से बी इज 60 किलो जूल, और डी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस सी से ए इज 0। तो बी, सी और डी है जो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन अब सिंगल इंटीजर वाला। तो ए फ्लैट सरफेस ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस r is glued to a horizontal table. Another thin uniform disk B of the mass m and with the same radius r rolls without slipping on the circumference of the A as shown in the figure. A flat surface of the B also lies on the plane of the table. The center of the mass तो ये क्वेश्चन है कि फ्लैट सरफेस ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस r is glued to a horizontal table. Another thin uniform disk B of the mass m and the same radius r rolls without slipping on the circumference A as shown in the figure. A flat surface of the B also lie on the plane of the table. The center of the mass of the B has a fixed angular speed omega about the vertical axis passing through the center of the A. The angular momentum of B is n m omega r square with respect to the center of A. Which of the following is the value of the n? तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू ओमेगा 2r, यानी V इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r, नो स्लिपिंग, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा जो है रिवॉल्यूशन है, ओमेगा नॉट है रोटेशन दिए हुए। तो L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी सी प्लस आई सी ओमेगा नॉट, और एम 2r भी प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, यानी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द लाइट ऑफ ए गिवन wavelength incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectron is 6.0 volt. This potential dropped to 0.6 volt if another source with the wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used. So what are the wavelength of the first source and the work function of the metal respectively? Take Hc by E is equal to 1.24 गुना 10 का पावर माइनस 6 जूल पर मीटर पर कूलम। तो Hc by लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 6, ठीक है 5 प्लस 6, Hc by 4 lambda is equal to 5 plus 0.6, 3 Hc by 4 lambda is equal to 5.4 electron volt, तो 5 is equal to 1.2 electron volt। यानी 3 by 4 into 6.6, 3 गुना 10 पर माइनस 24 गुना 3 गुना 10 पर 8 by 5.4 गुना 1.6 गुना 10 पर माइनस 19 is equal to लैम्डा is equal to 1.12 गुना 10 पर माइनस 7। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है कि 1.12 गुना 10 पर माइनस 7 एम और 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन of a bar is measured using a screw gauge. The pitch of the main scale is 0.5 mm. The circular scale has 4 divisions, and for one full rotation of the circular scale, the main scale shifts by the 2 divisions. The measure reading of the lifted are, तो measurement condition है कि 2 arms of the gauge touching each other without a wire, ठीक है, और attempt 1 with the wire और attempt 2 with the wire। तो जब 0 डिवीजन यहाँ पर 4 डिवीजन दिया हुआ, जब 2 arms of the gauge touching each other without wire, तो अटैम्प्ट 1 जब कर रहे हैं विथ बार में तो 4 डिवीजन आ रहा है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन आ रहा है। अटैम्प्ट में विथ बार तो 4 डिवीजन आ रहा है, और सी एफ आर का रीडिंग 16 डिवीजन आ रहा है। तो व्हाट आर द डायमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज? तो एल्सो इक्वल टू 0.1/4 यानी 0.001 mm, जीरो इधर हो जाएगा 4 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.004 mm। रीडिंग 1 में 0.5 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 0.001 माइनस 0.004 इक्वल टू 2.16 mm हो जाएगा। रीडिंग 2 इक्वल टू 0.5 गुना 4 प्लस 15 गुना 0.001 माइनस 0.004 इक्वल टू 2.12 mm आ जाएगा। तो मेन वैल्यू हो जाएगा 2.14 mm, और मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा 0.02 प्लस 0.02/2 यानी कि 0.02। डायमीटर हो जाएगा 2.14 प्लस माइनस 0.02, तो एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। तो इसका ठीक है एरिया इतना आ रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4C 2.14 प्लस माइनस 0.02 mm, और एरिया निकालेंगे तो पाई 1.14 प्लस माइनस 0.02 mm स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाएगा सी जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट वर्क ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन बाय सेगमेंट लाइंग ऑन द xy प्लेन? तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I/4 sin 45 डिग्री माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट I/4 L/2 माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट I/4 L/4 इंटू π/2 माइनस के कैप। इसका आंसर आएगा क्लियरली सी है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I/L 1 प्लस 1/4√2 पाई के कैप। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी चला जाएगा। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री का पेपर। तो केमिस्ट्री के जो पेपर में पहले इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ द H2SO4 एंड द Na2SO4 इन अ सॉल्यूशन इज 1 m and 1.8 गुना 10 minus 2 m respectively. Molar solubility of the PbSO4 in the same solution is x naught minus by m expressed in the scientific notation. तो द वैल्यू ऑफ द बाई कितना हो जाएगा गिवन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द PbSO4 केस इक्वल टू 1.5 गुना 10 minus 8
For the H2SO4 KAl is very large and KL2 is equal to 1.2 another for minus 2. H2SO4 से HFO4 माइनस प्लस H प्लस यानी 1m, फिर 0 0, फिर 1m इधर बन गया HFO4 माइनस और H प्लस. Na2SO4 1.8 another for minus 2, 2Na plus SO4 2 minus यानी 3.7 another for minus 2, 1.8 another for minus 2, HFO4 minus 1m और H plus SO4 2 minus Ka2 1.2 another for minus 2m. तो 1m 1.8 another for minus 2m. So since Q3 greater than Q3, it will move in the backward direction. So 1 plus x, 1 minus x, 1.8 into 4 minus 2 minus x. So K2 equal to 1.2 into 4 minus 2, यानी 1 minus x into 1.8 into 4 minus 2 minus x by 1 plus x. तो since इसमें अब क्या है कि since x is very small, 1 plus x tends to 1 and 1 minus x tends to 1. X is equal to 1.8 into the 4 minus 2 minus 1.2 into the 4 minus 2m. SO4 2 minus is equal to 1.8 into the 4 minus 2 minus 0.6 into the 4 minus 2 यानी 1.2 into the 4 minus 2 m हो जाएगा. अब PbSO4 से Pb2 plus SO4 2 minus है तो S 1.2 into the 4 minus 2m दिया हुआ है और S plus 1.2 into the 4 minus 2 दिया हुआ है. तो K is equal to S into S plus 1.2 into the 4 minus 2 equal to 1.7 into the 4 minus 8 PbSO4. Here S plus 1.2 into the 4 minus 2 equal to 1.2 into the 4 minus 2 since S is very small. S into S.1 S into 1.2 into the 4 minus 2 equal to 1.6 into the 4 minus 8. तो S is equal to 1.6 by 1.2 into the 4 minus 6m is equal to x into the 4 minus x into 10 के पावर माइनस x गुना 10 के पावर माइनस y m. तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. क्लियर है. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6. Next question देखिए, an aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt in the 1.8 kg of the water at 35 degrees Celsius. The salt remains 98% dissociated in the solution. The vapor pressure of the solution is 59.74 mm of the Ag. Vapor pressure of the water at the 35 degrees Celsius is 60 mm of the Ag. The number of the ions present per formula unit of the ionic salt is तो 0.1 मोल ionic salt in the 1.8 kg water at 35 degrees Celsius. तो vapor pressure of the solution 59.74 mm of the Ag. Vapor pressure of the pure H2O 60 mm of the Ag. तो let the number of the ions present per formula unit of the ionic salt be x. तो x से x a ions बन रहा है तो 0.1. तो 0.1 1 minus 0.9 तो 0.1 into 0.9 गुना x. तो total moles of the non-volatile particle is equal to 0.01 plus 0.09 x in the 1.8 kg of the water. तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 1.8 गुना 3/18 यानी कि 100 मोल्स. और रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर P0 माइनस P5 बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स. तो P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स बाई मोल्स ऑफ द वाटर. तो 60 माइनस 59.74 बाई 59.74 इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.09 x बाई 100. तो 0.276 गुना 100 इज इक्वल टू 0.59274 प्लस 0.59274 गुना 9 इंटू x. तो 27 minus x minus 0.59274 is equal to 0.59274 into 9x. तो x is equal to कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5. क्लियर छे. अगला सवाल है, consider the strong electrolytes ZmXn UM/P and the VmXn. Limiting molar conductivity of the UM/P and the VmXn are the 250 and the 440 Simon centimeter square per mole inverse respectively. The value of the M plus N plus P is given ion Zn plus UP plus Bn plus and the Xm minus Ym minus lambda naught Simon centimeter square per mole inverse 50, 25, 100, 80 और 100. Lambda naught is the limiting molar conductivity of the ions दिया हुआ है. The molar plot of the molar conductivity of the Zm Xn Vs versus root C is given as. तो lambda of the Zm Xn S centimeter square per mole inverse और इधर दिया रूट वसी मोल पर लीटर. ठीक है, के रूट 0.01 से 0.02 0.3 से 0.4. तो लैम्डा नॉट यू एम वाई पी इक्वल टू एम इंटू लैम्डा नॉट यू पी प्लस पी इंटू लैम्डा नॉट वाई एन इक्वल टू 250. तो 25m प्लस 100 पी इक्वल टू 250. तो m प्लस 4 बी इक्वल टू 10. तो लैम्डा नॉट बी एम एक्स एन इक्वल टू एम इंटू भी नॉट प्लस एन इंटू लैम्डा नॉट एक्स इक्वल टू 440. तो 100m प्लस 80n इज इक्वल टू 440. तो 5m प्लस 4n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22. अब यहाँ से देखें आगे तो लैम्डा इज इक्वल टू Zm Xn दिया हुआ है और रूट C दिया हुआ है. तो फ्रॉम द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द कर्व लैम्डा नॉट Zm Xn इक्वल टू 340. तो m इंटू लैम्डा नॉट Zm नॉट प्लस n लैम्डा नॉट Xn इक्वल टू 340. तो 50m प्लस 80n इज इक्वल टू 340. तो 5m प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34. अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4n इज इक्वल टू 12.
n is equal to 3, putting in the 2 we get m is equal to 2, putting in the 1 we get p is equal to 2, तो m plus n plus p इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 7। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा 7 जाएगा। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन ऑफ द Xc एंड द O2F2 गिव्स a Xc compound P, the number of the moles of the HF produced by the complete hydrolysis of the 1 mole of the pH, तो Xc plus 2 O2F2 देता है XcF4 plus 2 O2, XcF4 plus 6 H2O देता है Xc plus XO3 plus 3/2 O2 plus 12 HF, 1 mole of the XcO4 gives 4 mole of the HF on the hydrolysis, thermal decomposition of the AgNO3 produces 2 paramagnetic gases, the total number of the electrons present in the anti-bonding molecular orbitals of the gas that had the higher number of the unpaired electron is। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 आ गया था, ये तो क्वेश्चन हो गया था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन था, इसमें है जो 4 आ जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि थर्मल डिकम्पोजिशन of the AgNO3 produces 2 aromatic gases, total number of electrons present in the anti-bonding molecular orbital of the gas that had the highest number of the unpaired electrons is, तो AgNO3 2Ag plus 2Na plus half O2 देता है। Both NO2 and O2 are paramagnetic. NO2 is odd electron molecule with one unpaired electron, O2 has the 2 unpaired electron। तो अगर इसका बना है तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर सिग्मा 2px, पाई 2p बाई पाई 2pz, पाई स्टार 2p बाई पाई स्टार 2pz, और फिर सिग्मा स्टार 2px। तो टोटल नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है 6, तो इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द आइसोमेरिक टेट्राइन्स नॉट कंटेनिंग द sp हाइब्रिड कार्बन एटम्स दैट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये कंपाउंड है, इसमें पहले Na लिक्विड Na3 किए, फिर Br2 एक्सेस किए, फिर अल्कोहलिक की यूज करिए। इस कंपाउंड में Na लिक्विड Na3 करेंगे तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से फिर ये वाला बन जाएगा यहाँ पर, फिर Br2 एक्सेस करेंगे तो Br यहाँ ऐड होगा, Br यहाँ ऐड होगा, फिर अल्कोहलिक की यूज करेंगे तो इसका दो ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आइसोमर बनेगा क्योंकि इस जगह पर सिस ट्रांस हो रहा होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्मड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्ट सीक्वेंसेज, तो O3 प्लस ZnH2O KMnO4 NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे Cr2O3 770 केल्विन 20 एटीएम पर, तो ये O3 ZnH2O है, COOH KMnO4 कर रहे हैं, तो COOH यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड से ये KMnO4 करेंगे। सबसे पहले तो इसका क्या है O3 ZnH2O, तो ये तो ओजोनलाइसिस है, फिर उसके बाद KMnO4 ऐड किए तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और एल्डिहाइड से बन गया एसिड। इसके बाद फिर NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और Cr2O3 फिर कर देंगे तो इसका फिर बेंजीन बन जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द chiral molecule formed from the 1 molecule of P on the complete ozonolysis O3 ZnH2O each, इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। क्यों 2 जाएगा, क्योंकि इसका कंपाउंड में O3 ZnH2O करेंगे तो एक कारल फिर एक कारल कारल फिर एक कारल फिर कारल फिर एक कारल फिर एक कारल बन रहा है, तो इसमें कितना जाएगा 2 चला जाएगा। अब इसमें है कि to check the principle of the multiple proportion, a series of the pure binary compounds PM, Q and were analyzed and their composition is tabulated below. The correct option is compound 1, 2, 3 weight percent of the P फिर weight percent of the Q दिया हुआ है, तो weight percent of P 50, 44.4 और 40, फिर weight percent of Q 50, 55.6 और 60 दिया हुआ है। If the empirical formula of the compound P is compound 3 is P3Q4, then the empirical formula of the compound 2 is, ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो कंपाउंड 1, 2, 3 वेट ऑफ परसेंट ऑफ द P 50, वेट परसेंट ऑफ Q भी 50 है, वेट P2 में 44.4, 55.6, 40 फिर 60 दिया हुआ है, तो फॉर द ऑप्शन ए लेट एटॉमिक मास ऑफ P be MP and atomic mass of Q be MQ, molar ratio of the P is to Q in the compound 3 is 40 by MP is to 40, 60 by MP is equal to 3 is to 4, 2 MQ by 3 MP is equal to 3 by 4 यानी 9 MP by 8 MQ, तो molar ratio of the atoms P is to Q in the compound 2 is 44.4 by MP 55.6 by MQ, तो 44.4 by MQ is to 55.6 by MP, तो 44.4 MQ is to 55.6 into 8 MQ by 9, यहाँ से 9 into 10 आ रहा है, तो empirical formula of the compound 2 is therefore P9Q10, तो ऑप्शन ए क्या है इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी को है जो चेक करते हैं, तो मोलर रेशियो ऑफ द P is to K in the compound 3 is 40 by MP to 60 by MQ to 3 by 2,
2m³ by 3mp is equal to 3/2, so 9mp by 4mq. इफ mp is equal to 20, mq is equal to 9 is 20 by 4, यानी कितना आ जाएगा 45. तो ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा. अब ऑप्शन सी को देखते हैं. मोलर रेशियो ऑफ द एटम p to q in the compound 2 is 44.4 by mp. 55.6 by mq is equal to 44.4 mq is 55.6 mp is equal to 1:1. तो mp by mq is equal to 44.4 by 55.6. Molar ratio of the atoms p to q in the compound 1, 50 by mp is to 50 by mq is equal to mq by mp. तो 55.6 into 44.4 is equal to 5:4. Hence the empirical formula of the compound 1 is P5Q4. Hence the C option भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा for option D. Molar ratio of the atoms P to Q in the compound 1 is 50 by mp is to 50 by mq is equal to mq by mp, 35 by 71:2. Hence the empirical formula of the compound 1 is PQ2. Hence option D क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इसमें जो है ऑप्शन बी और सी है जो करेक्ट हुआ कि if the empirical formula of the compound 3 is P3Q2 and the atomic weight of the element P is 20, then the atomic weight of the Q is 45. If the empirical formula of the compound 2 is PQ, then the empirical formula of the compound 1 is P5Q4 हो जाएगा. तो आंसर ऑप्शन बी और सी है जो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है कि द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एंट्रोपी. द करेक्ट ऑप्शन अबाउट एंट्रोपी इफ आर गैस कॉन्स्टेंट है, फ्राइडे कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर. तो इसमें हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी बाई डी टी पी, और एन एफ डी ई सेल बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ डी ई सेल बाई डी टी डेल्टा एफ बाई एन एफ आर बाई एफ गिवन, और डेल्टा एफ इज इक्वल टू एन आर. तो फॉर द रिएक्शन एम जी प्लस 2h प्लस H2 प्लस M2 प्लस ले रहा है, एन इज इक्वल टू 2, डेल्टा एफ इक्वल टू 2 तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. फॉर द रिएक्शन पी टी H2 1 बार H प्लस 0.01 H प्लस 0.1 और H2 1 बार पी टी. तो ई सेल इजिकल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 1 log 0.01 by 0.1 is equal to 0.0591 volt. E cell is positive, delta G less than 0, delta S is greater than 0, delta H is equal to 0 for the concentration cell. Hence option B is correct. Racemization of an optically active compound is a spontaneous process. Hence here delta H is equal to 0. Similar type of the bonds are present in enantiomer as delta S is greater than 0. Hence ऑप्शन सी है जो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा. तो NiH2O के 6 2 प्लस 3n NiEN3 के 2 प्लस 6 H2 है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मोर स्टेबल कंपाउंड की फॉर्म में डेल्टा एफ ग्रेटर देन 0. तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है. कि बी में कि द सेल रिएक्शन पी टी एस Hg2 1 बार H प्लस एक्वस 0.01 H प्लस एक्वस 0.1 m H2 गैसेस 1 बार, और पी टी एस इज एन एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस. फॉर द रेसिमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0. फॉर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 फॉर NiH2 का 6 2 प्लस 3n NiEN3 2 प्लस 6 H2 EN क्या आ गया, तो एथिलीन डाई अमाइन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद द NH3 टू गिव द बोरोन नाइट्राइड Bn इज आर. तो 2b प्लस 2NH3 2Bn प्लस 3H2 देगा. बोरोन प्रोड्यूसड Bn विद अमोनिया बट बोरोन इज एलिमेंट नॉट कंपाउंड, सो दैट दिस ऑप्शन नॉट इन्वॉल्व्स इन द आंसर. अब B2H6 प्लस 6NH3 देगा. BH2 NH3 के 2 प्लस BH4 माइनस टी इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस. तो B3N3H6 प्लस 12H2. तो B3N3H6 टी ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस BNX देगा. तो B2O3 लिक्विड प्लस 2NH3 1200 डिग्री सेल्सियस 2Bn प्लस 3H2 देगा. तो HbO4 प्लस NH3 देगा NH4 BF4. तो B और C हो जाएगा कि इसमें आंसर आएगा कि B2H6 और C B2O3 ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है कि द करेक्ट ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज 900 से 1500 केल्विन इज. तो CO प्लस FiO2 CaFiO3 इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 900 से 1500 केल्विन. ठीक है, ये तो सही है. लाइमस्टोन यूज्ड टू रिमूव द सिलिकेट इम्प्योरिटी. इन द फ्यूजन जोन मोल्टन आयरन बिकम्स heavy by absorbing the elements impurity and produce the pig iron in a temperature range 900 से 1500 केल्विन. pig iron obtained from blast furnace contains 4% कार्बन. ये भी सही है. ऑक्सी कन्वर्ट टू CO2 टू CO. ये भी सही है. C प्लस CO2 टू CO इन द टेम्परेचर रेंज 900 से 1500 केल्विन. ये भी सही है. एग्जॉस्ट गैस डज नॉट कंटेन और NO2. एग्जॉस्ट गैस कंसिस्ट ऑफ, ये गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन A B और C ये तीनों है करेक्ट है. अगला सवाल है कौन सा द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट है. जैसे ये बेंजीन है, इसमें ये कंपाउंड प्लस LCl3 ऐड करेंगे तो P बनेगा. P में ZnHgHCl ऐड करेंगे तो Q बनेगा. Q में FeCl2 करेंगे तो R बनेगा. R में LCl3 करेंगे तो S बनेगा. S में फिर ZnHgHCl3 मेंशन रिडक्शन करेंगे तो एक हाइड्रो का बनाएगा. ठीक है.
कंपाउंड PnQr कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है जो सही है, तो पहले बेंजीन में Al3 प्लस ये वाला कंपाउंड ऐड करेंगे तो ये बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड बनेगा। ZnHgHCl करेंगे तो ये है जो ये रिड्यूस हो जाएगा ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड, और COOH ये बन जाएगा। फिर SOCl कर देंगे तो यहाँ पर COCl आ जाएगा। फिर HCl3 कर देंगे तो ये है जो यहाँ पर ये बन जाएगा। ZnHgCl कर देंगे तो ये बन जाएगा। फिर R में R2CD करेंगे तो COOR इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है द कंपाउंड PnQr कार्बोक्सिलिक एसिड और कंपाउंड PnF रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन, तो A और C इसका है जो चला जाएगा। नेक्स्ट है कि among the following the correct statement about the polymers is, तो the polymerization of the neoprene gives the nature rubber, तो B है जो स्टेटमेंट B है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, पोलीमराइजेशन क्लोरोप्रीन नहीं बल्कि नियोप्रीन देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेट्राफ्लोरोथेन बाय हीटिंग विद द परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो ये सही है। और C भी सही है, PVC वाले थर्मोप्लास्टिक, तो ये भी सही हो जाएगा। एथिलीन एट 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 से 2000 एटम प्रेफर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इन ए स्वेटर यील्ड्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो ये है जो गलत हो जाएगा। सही है, तो ये इसमें आ रहा है, यानी कि B और C इसमें जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम X occupy the FeC lattice sites as well as the alternate tetrahedral parts of the same lattice. The packing efficiency of the resultant solid is closest to, तो एटम X occupy the FeC lattice point as well as the alternate tetrahedral parts of the same lattice 1/4 distance of the body diagonal, यानी √3a/4 यानी कि 2rx, तो a is equal to 8rx/√3, तो number of atoms X per unit cell is equal to 4 + 4 is equal to 8 FeC lattice point alternate tetrahedral parts, the percent packing efficiency volume occupied by the X by volume of the cubic unit cell into 4, यानी 8 × 4/3 pi r x cube by a के क्यूब इंटू 100, यानी 8 × 4/3 pi r x क्यूब by 8rx/√3 के क्यूब इंटू 100, यानी 8 × 4/3 इंटू पाई इंटू 1/8 के क्यूब इंटू 3√3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 34%। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा 34%, यानी लगभग 35 के आसपास में, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिएक्शन of the HCl3 and with the HCl gives a paramagnetic gas which upon reaction with O3 produces HCl3 plus HCl देता है ClO2 जो कि पैरामैग्नेटिक है, प्लस हाफ Cl2 प्लस H2O, 2ClO2 प्लस 2O3 देता है Cl2O6 प्लस 2O2। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा Cl2O6 चला जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन PbNO3 and NaCl in the water produces a precipitate that dissolves upon the addition of the HCl of the appropriate concentration. The dissolution of the precipitate due to the formation of the PbNO3 plus 2NaCl देगा PbCl2 plus 2NaNO3 excess HCl to PbCl4 2 minus ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा PbCl4 2 माइनस, यानी ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट है कि टर्मिनेट डी ग्लूकोज विद द एक्वस NOH रियल्टी इन मिक्सचर ऑफ द मोनोसैकेराइड विच आर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ये वाले मोनोसैकेराइड। क्यों, क्योंकि बेसिक कैटेलाइज टाटोमेरियम थ्रू द इन डायोल इंटरमीडिएट, तो ये कंपाउंड हो गया। फिर इससे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी इसका आंसर चला जाएगा।